السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 11 کا، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظُلُمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ۔ قیامت کے دن بڑے سے بڑا فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور پر ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظُلُمَتْ، اور اگر ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا ہو، یعنی اگر ہر گناہگار کے پاس جس نے ظلم کیا، یعنی کفر، شرک، نافرمانی کے کام کیے، ما فی الارض لفتدت بھی، وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، یعنی زمین کا سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، اور وہ سب چیزوں کو لے کر اگر فدیہ کے طور پر لے آئے اپنی جان کو چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے، سب کچھ بھی دے دے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس سے کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس زمین بھر سونا ہو تو کیا اسے فدیے میں دے دو گے؟ فرمایا تو وہ کہیں گے ہاں۔ فرمایا تو وہ کہے گا میں نے تمہیں جس چیز کا مکلف بنایا تھا وہ اس سے بھی بہت آسان تھی، یعنی جو تمہیں میں نے دنیا میں دی تھی وہ اس سے بھی بہت زیادہ آسان تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کے لیے جہنم ہے جہاں یہ داخل ہوں گے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ شرمندگی کو چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ حشر کے میدان میں ظلم کرنے والے عذاب دیکھ کر دل ہی دل میں پچھتائیں گے، کیونکہ ان کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ندامت اٹھائیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے اعمال کے بارے میں ان پر کوئی بھی قطعاً ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے حساب کتاب میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی، نہ ہی ان کی برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا، نہ ہی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے سبب ان کی برائیوں میں مزید اضافہ کر دے۔ جیسے ہم میں کسی کے ساتھ کوئی ہمارے دل میں کسی کے لیے خلش ہوتی ہے تو ہم اس کے برائی میں دو تین الفاظ اور مزید بڑھا کر ساتھ لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ان کی برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا، نہ ہی ان کی نیکیوں میں کچھ کمی کی جائے گی۔ نیکیاں تو ان کی کسی کام نہیں آئیں گی، بلکہ ان کو برائیوں کا ہی عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اصل بات ایمان کی ہے۔ چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تو ان کا نیک عمل کچھ بھی کام نہ آئے گا، کیونکہ ان کے ہر نیکی کا اجر و ثواب ان کو دنیا میں ہی ان کو آسائش اور زندگی کی آسانی کے طور پر ان کو دے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کافروں کو ان کے دنیا کے اندر ہی ان کو تمام آسائشیں ان کے ہر نیکی کے سبب ان کو دے دیتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں بچتا۔ پھر میرے رب نے فرمایا الا، خبردار، سن لو، ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ آسمان اور زمین کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی حقیقی رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ پھر سن لو کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ حق اور سچ پر مبنی ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ پورا نہ ہوگا، بلکہ وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ سیدنا ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء سے ثواب کا اور اپنے دشمنوں سے عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے، اپنی جہالت کے سبب نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کو، اللہ تعالیٰ کی ڈراووں کو، اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کو قبول نہیں کرتے۔ میرے رب نے پھر اگلی آیت میں مزید اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، سب کو اسی رب کی طرف ہی واپس لوٹ کر جانا ہے۔ میرے رب نے مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور، اے لوگو، بلا شبہ اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو مخاطب کر کے قرآن مجید کی وہ صفات بیان کی ہیں جو بندوں کی ضرورت ہے۔
इन औसाफ को बयान करके कुरान करीम की तरफ मुतवज्जा होने की तरगीब दिलाई है। और अल्लाह ताला ने फरमाया क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, कि बिलाशुबा तुम्हारे रब की तरफ से, तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारे पास अजीम नसीहत आ गई है। यानी तुम्हारे रब ने तुम्हें नसीहत की है और तुम्हें उन अमाल से बचाने के लिए डराया है जो उसकी नाराजगी का बाइस बनने वाले हैं और उसके अजाब का बाइस बनते हैं। उसने अमाल की खराबियों और उनके असरात और नताइज से तुम्हें तुम्हें अल्लाह ताला ने आगाह करके तुम्हें बचाया है। वशिफा वशिफा उल लिमा फी सुदूर, और शिफा है उसके लिए जो दिलों में है। यानी कि दिलों में क्या है? किताब किताब दिल की बीमारियों को दूर करती है, किताब जहन की शकूक को दूर करती है, दिल और दिमाग के गलत तसव्वुरात को निकालती है, यकीन की दौलत से दिलों को भर देती है। और अल्लाह ताला इंसान के दिल को पाक साफ करता है। दिलों की बीमारियों में शहवत दिलों की बीमारियों में शामिल है और शुबे भी दिलों की बीमारियों में शामिल है। अल्लाह ताला इन तमाम बीमारियों से इंसान के नफ्स को पाक कर देता है और इस दिल को पाक साफ कर देता है। अल्लाह ताला ने इस कुरान को न सिर्फ नसीहत, बल्कि अल्लाह ताला ने वशिफा उल लिमा फी सुदूर, जो दिलों में है, वो जो जो सीनों में दिल है, उसको शिफा अता करता है। हम अगर इस नीयत से कुरान को पढ़ेंगे तो यकीनन मेरा रब हमारे दिलों को जरूर जरूर शिफा अता करेगा। वहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और ना सिर्फ ये बल्कि ये शिफा अता करने वाली है, नसीहत देने वाली है, बल्कि ये हदायत और अपने रब की तरफ से और रहमत है। मोमिनीन लोगों के लिए हदायत है, जो ईमान लाने वाले हैं सिर्फ उनके लिए हदायत है, और रहमत भी सिर्फ उनके लिए है जो इस पर ईमान लाते हैं। सईदना उमर से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इसी किताब के जरिए लोगों को बुलंद करता है और इसी किताब के जरिए लोगों को पस्त और जलील करता है। यकीनन आज अल्लाह ताला ने अगर हम लोगों को आपस में मिलाया तो अल्लाह ताला ने अपने इस कुरान और इस किताब की बदौलत ही हम सबको आपस में इकट्ठा किया और जमा किया। नहीं तो हमें किसी के अंदर इतनी ताकत न थी। और जो अल्लाह ताला ने आज हमें इज्जत और इकराम, और अल्लाह ताला ने आज कुछ लोगों के दरमियान हमारा नाम रखा, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी किताब, अपने कुरान और अपने अल्फाज की बदौलत रखा। नहीं तो हम तो दुनिया के किसी कोने में बिल्कुल एक कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी गुजार रहे होते और बिना मकसद की जिंदगी गुजार रहे होते। तो ये मेरे रब की किताब का, मेरे रब के कुरान का फजल है, जिसकी बदौलत आज अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बतें डाली हैं। ये मेरे रब का ये मेरे रब का हम सब पर फजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की किताब में हदायत है और रोशनी है। जिसने उसको मजबूती से पकड़े रखा और वो हदायत पर कायम हो गया, और जिसने गफलत बरती वो गुमराह हो गया। और सईदना ज़ैद बिन अरकम की दूसरी रवायत के ये अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला की किताब जो अल्लाह ताला की रस्सी है, जो इसकी पैरवी करेगा हदायत पर होगा, और जो इसे छोड़ेगा वो यकीनन गुमराह हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इस किताब को तमाम लोगों के लिए, तमाम मोमिनों के लिए शिफा और रहमत का जरिया बनाया, जो जालिमों को खसारे के सिवा किसी चीज में ज्यादा नहीं करता। अगर जालिम इस कुरान को पकड़ते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ, अगर इस कुरान को सीखते हैं तो इस कुरान को सीखते नहीं बल्कि वो सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस किताब के अंदर से कजी ढूंढने के लिए, गलतियां तलाश करने के लिए। यकीनन अल्लाह की किताब में कोई गलती नहीं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हीले और बहाने ढूंढते हैं ताकि वो इस कुरान पर अमल ना कर सके। फिर मेरे रब ने अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाया, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ्रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी आप कह दें ये अल्लाह ताला के फजल और उसकी रहमत से है। यानी अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और अपने फजल से अपने बंदों को नवाजा है। वबी रहमती ही, यानी अपनी रहमत से अल्लाह ताला ने इसको नवाजा है। सो उसी के साथ तो लाजिम है कि वो खुश हों, और वो उन तमाम चीजों से बेहतर है जिसे लोग जमा करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया, खास तौर पर यहाँ पर क्या फरमाया कि फबिज़ालिका फलयफ़रहू, सो उसी के साथ तो लाजिम है कि वो खुश हों, यानी इल्म और तकवा के बाद ईमान और अमल सौले पर खुश हों, और खुशियां मनाए कि अल्लाह ताला ने इन सबको अमल सौले करने की तौफीक अता फरमाई। ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, इतराओ मत, यकीनन यकीनन अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता। यानी अपने आप पर इतराना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने अपने ईमान पर खुशियां मनाने का, अपनी नेक अमल पर खुशियां मनाने का हुक्म दिया, लेकिन इतराने का हुक्म नहीं दिया कि इंसान ये समझे कि मैं बहुत नेक और पाकबाज हूं। इतराने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ताला ने सूरह मोमिन में भी फरमाया, फिर जब उनके रसूल उनके पास वाज़ेह दलाइल लेकर आए तो वो उस पर फूल गए, और जो कुछ इल्म में से उनके पास था और उन्हें उस चीज ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाते थे।
अल्लाह ताला फरमाते हैं हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, वो उन तमाम चीजों से बेहतर है जिसे लोग जमा करते हैं। यानी ये कुरान इस फानी दुनिया और उसके बुरे असरात से जिनकी जो इंसान ताकत नहीं रखता, उन सब से बेहतर है। इस कुरान का इल्म हासिल करना, इस कुरान का इल्म सिखाना, इस कुरान के इल्म को बांटना, समेटना, इस कुरान के इल्म को अपने सीने में बसाना, इससे बढ़कर दुनिया में कामयाबी कुछ नहीं। क्योंकि दुनिया की तमाम चीजें फानी हैं। तो फिर हम क्यों ना अपनी औलादों को इस इल्म को सिखाएं, जिस इल्म का मेरे रब ने वादा कर दिया कि तमाम दुनिया की तमाम आसाइशें, तमाम चीजें जिनको तुम समेटते हो, उन सब से बेहतरीन ये है। कभी भी अहले कुरान को मैंने भूखे मरते नहीं देखा। कभी भी मैंने उनको मुफलिस नहीं पाया कि वो इतने मुफलिस हों कि उनके खाने पीने का बंदोबस्त ना हो सके। अल्लाह ताला ने उनको हर हर चीज में बरकतों से नवाजा। मेरे रब ने अपना वादा पूरा कर दिखाया, ताकि हम जैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी में पड़े हैं, ये समझ जाएं कि फलाह और कामयाबी सिर्फ और सिर्फ इस कुरान की बदौलत है। फिर मेरे रब ने मजीद फरमाया, कुल अराइतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्किन फजअलतुम मिन्हु हरामा व हलाला। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप कहते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है, जो रिस्क अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उतारा है, यानी जानवरों, नबातात, खानों और खेतों के मुख्तलिफ किस्मों के, वो जिन्हें अल्लाह ताला ने रिस्क और रहमत के तौर पर तुम्हारे लिए उतारा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके लिए कि फजअलतुम मिन्हु हरामा व हलाला, तुमने उसमें से खुद ही कुछ हराम और कुछ हलाल बना लिया। यानी तुम बगैर किसी दलील के अल्लाह ताला के हलाल करदा चीजों को हराम और हराम को हलाल ठहराते हो, सिवाय सिर्फ सिर्फ अपनी महज अपनी ख्वाहिशात के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हमेशा दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मर्जुकनी इल्मन नाफियन, या अल्लाह मुझे नफा देने वाला इल्म अता फरमा। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुकना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुकना इज्तनाबह। यानी इस दुआ के अंदर भी अल्लाह ताला से रिस्क की कसरत और उस रिस्क यानी कि इल्म की भी कसरत से के लिए दुआ की गई। इंसान समझता ये बात है कि सिर्फ और सिर्फ रिस्क ये है कि हमारे पास माल और दौलत आ जाए, बल्कि माल और दौलत के साथ साथ इल्म और सौले औलाद भी अल्लाह ताला की तरफ से अता करता रिस्क ही हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ किस्म का रिस्क अता किया। घरों में सुकून भी अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजीद अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाया, कुल 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 अल्लाहु अज़िन लकुम अम अल्लाहि तफ्तरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप कहते हैं कि क्या अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इसकी इजाजत दी है। यानी तुम ये जानते हो कि अल्लाह ताला ने बहीरा, साइबा, वसीला, हाम का हुक्म नहीं दिया। यानी उन्होंने अपने पास से ऊँटों और ऊँटनियों को अपने नाम दे दिए थे, अपने पास से उनको उन जानवरों को नाम देकर किसी को साइबा, वसीला और हाम का नाम देकर उनको अपने लिए हराम करार दे दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम जानते हो, आप कहते हैं कि क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे लिए इसकी कोई इजाजत दी है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अम अलल्लाहि तफ्तरून, या तुम अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हो। अल्लाह ताला की जात पर झूठ बांधना कोई आम और छोटी बात नहीं। वमा ज़न्नु अल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िबा यौमल क़ियामा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और क्या ख्याल है उन लोगों का जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं कि क़यामत के दिन के बारे में वो क्या कहते हैं। अल्लाह पे झूठ तो बांध दिया तो उन्हें नहीं मालूम कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला की तरफ लौट कर जाना है। उनका अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में क्या ख्याल है। अल्लाह ताला फिर अब आगे मजीद जवाब देते हैं, इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नास वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून। यकीनन अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। लेकिन अक्सर लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते, और उन्हीं लोगों में हम भी उनमें शामिल हैं कि हम अल्लाह ताला का उस तरह शुक्र अदा नहीं करते जिस तरह अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करके अल्लाह ताला के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का हक है।